Hello to all the students. So first of all, I will read the disclaimer of this video. This video is for education purpose only. No copyright infringement. This copyright belongs to its rightful owner. Credit goes to respective online video composers, teachers, institute and speakers, as well as video music composers and singers. So this video is only for education purpose. Okay, so hello to all of you students. I am Professor Sonia Digva from SGM College of Koparga. So in this session or lecture, we continue our subject for A group student. It will be specialized auditing. In last lecture, many lectures we have completed our first lecture on YouTube channel, and also we have started our second chapter, and also half portion we completed in our second chapter. So we completed how many points in last lectures? Last three lectures we have take. This is our fourth lecture of second chapter of specialized auditing. Second chapter will be audit of bank. In first lecture we have completed introduction, meaning, okay, and approaches. We have seen the approaches in first lecture, and in second lecture we have detailed study about the concept of approaches, and we have moved forward to our that points explanation in second. And in third session we have completed principal enactments of governing bank audits stages. In last lecture we have completed our stages of bank audit. Okay, so from in this lecture, this is our four lectures of specialized auditing subjects, chapter number second. Okay, so this is our fourth session. In this session we have, or in this lecture we have discussed about the list of document which is required whether you making an bank audit. How many document you have required whether you have preparing an bank audit. Okay, what kind of documents you have required? First, bank closing set, banking closing. Okay, whenever you have closed, whenever you have preparing any kinds of auditing of any one company, bank, partnership firms related to any other sources which you have making an audit of particular area or particular place or particular business or particular construction or any kinds of, whether you're making an auditing, what kinds of things you have required is to prepare and balance sheet and profit and loss account according to the rules and regulations which have been maintained by the particular company. Okay, but in the banking sector, the whether you're making a banking audit, the auditor has to follow the rules and regulation which are, or procedure which are governed by the गवर्नमेंट. ओके, सो वेदर वी मेंटेनिंग, जब हम बैंकिंग ऑडिट करते हैं, बैंकिंग ऑडिट करने के लिए तो हमें बैंक ऑडिट किस प्रकार की रहती है और उनके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं कि हाँ, जब बैंकिंग ऑडिट हम करते हैं तो हमें कौन कौन से एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. फर्स्ट, बैंकिंग क्लोज सेट, कि जिससे हम अपना ईयर क्लोज करते हैं. सो ओके, सो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट क्या आती है? उनके सारे स्टेटमेंट्स, एंट्रीज, रिकॉर्डेंस, डाटा, किसके अंदर डायरेक्ट हम स्टेटमेंट्स में वी हैव एंटर्ड द ट्रांजेक्शन्स. इट कंटेन्स ओनली बैलेंस शीट, profit and loss account and other annexures which have been given. Other annexure which will be cash department, purchase department, sales department, what kinds of items there in banking are required, deposits, withdrawals and loans. So they are another extensions. It may contain only balance sheet and profit and loss account. And whether you're making an audit, you require to prepare audit report, and you have to mention the audit report to complete that audit report by statutory audit report and the statutory auditor. Whether auditor maintain the audit report, they have maintain according to the statutory audit reports, rules and regulation which have been conducted by the statutory audit report. compliance certificate audit, whether you making an audit, so उसके लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है.
from 3CA and from 3CD we have discussed in a detailed explanation of that. Okay, so long form of audit report. In long form of audit report, you have to study that what kinds of documents, what kind of balance sheets, what kinds of items we have recorded according to management of resources, supporting document, examining forms, application. In long form of audit report, you have to study the all kinds of details about which kind of requirement of audit. It is in long form of audit you have to study a detailed questionnaire which have been prepared by an RBI. सो इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में डिटेल क्वेश्चंस रहते हैं जिसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग कर सकता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे हैव टू प्रिपेयर एंड दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक दे हैव टू सबमिट द बैंक्स मैनेजमेंट. ओके, सो ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं तो सारी गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट डिसबर्समेंट्स. सो इन दिस form of long form of audit report the auditor have contain all kinds of contains things submission process. Okay, so you have to study memorandum of changes. So memorandum of changes में हम लोग क्या देखेंगे कि अब कोई if we have maintaining rules and regulation के टूवर्ड्स हम बैंकिंग ऑडिट कर रहे हैं तो वो कौन के अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड हो रहा है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू MOA, तो उसके अंडर कुछ चेंजेस तो नहीं हुए. ओके, एंड रिपोर्ट ऑन गोज टू जिलानी कमेटी रिकमेंडेशन. तो ये कंपनी का अगर सपोज किसी कंपनी का कर रहे हैं ओके तो यहाँ पे एक कंपनी मेंशन करिए घोष एंड जिलानी कमेटी रिकमेंडेशंस. तो इनका जो रिकमेंडेशंस है मोस्ट ऑफ रिपोर्ट्स अगर किसी की भी कर रहे हैं तो उनका कंसिडरेशन लगेगा उस कंपनी का. एंड अदर सर्टिफिकेट्स इफ दे हैव रिक्वायर्ड. ओके, so these are the documents which we have required whether we have making and banking audit. Move to next slide. In next slide in today's session we have also discussed the slide features of enactments effective banks. What are the features which have compulsory whether we have making and auditing. ओके, सो whether we have making कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं और बैंकिंग को फ़ायदे क्या क्या होते हैं और किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वी हैव सीन इन दैट स्लाइड फीचर्स ऑफ affecting banks. Okay, so first I will read the bank. Audit of bank is made compulsory under the enactment governing the banks. Okay, जो यानी कि बैंक ऑडिट हम किसके अंडर करते हैं अकॉर्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गवर्न बाय द बैंक. जो गवर्नमेंट बैंकिंग को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करेगी उसी के अंडर ऑडिट ऑफ बैंक्स हैव बीन डन फॉर अ पर्टिकुलर बैंक. और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विथ इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो जो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1946 इट्स ओनली नॉट डील्स विथ पर्टिकुलर अकाउंट्स. पर्टिकुलर अकाउंट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. they have also focus on various banking institutions. Okay, so banking regulation act के towards banking के accounts हम सारे maintains करेंगे. सारे के सारे विविध प्रकार के जो भी accounts हैं we have maintained by the various banks and institution. Okay, and जो banking company है 1970 में के अंडर बैंकिंग कंपनीज जो रहती हैं वो मोस्ट ऑफ वो किसके अंडरगढ़ अब रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू एक्वाजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड इट रेगुलेट्स फॉर अ नेशनलाइज बैंक. नेशनलाइज बैंक किसके टूवर्ड्स में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन बैंकिंग कंपनीज एक्वाजिशन एंड ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग एक्ट 1970. ओके, एंड द बैंकिंग जो कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट अलग रहता है बैंकिंग एक्ट अलग रहता है. सो दे हैव बोथ डिफरेंट. सो बहुत सारे विविध प्रकार के हमने प्रिंसिपल ऑफ इनेक्टमेंट में देखे थे जैसे कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के अंदर रजिस्टर्ड है. ओके, और इफ़ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो उन्होंने फॉर्म करा है एज एन रीजनल रूरल बैंक. तो रीजनल रूरल बैंक एक्ट किसके अंतर्गत गवर्न है अकॉर्डिंग टू 1976 एक्ट. ओके, तो ये सारी जो रीजनल रूरल बैंक है
तो ये स्टेट करेगी, और इनके भी अकाउंट्स दे हैव ऑल्सो मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल किसके टुवर्ड्स करेगी? अकॉर्डिंग टू 1955 एक्ट कंट्रोल्स देयर बैंकिंग ऑन ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी बैंक्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना बैंकिंग इनएक्टमेंट किसके टुवर्ड्स प्रिपेयर करेगी? अकॉर्डिंग टू 1955 एक्ट। ओके, तो दिस काइंड्स ऑफ banks have maintaining their accounts as per their act or as per the year which they have governed by the government. And Reserve Bank of India is providing circulars and guidelines which are followed by the banks. So Reserve Bank of India सारे के सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन इशूज़ गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट उस पोजीशन उस टाइमिंग के रहेगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्स करे हैं, और जो भी गाइडलाइंस पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर टाइम पे दी जाती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन पब्लिश एंड दैट इंफॉर्मेशन विच हैव बीन फॉलो बाय द बैंक। सो ऑडिट ऑफ बैंक क्या है? एक स्पेशलाइज टास्क है। ऑडिट ऑफ बैंक इज नॉन एज स्पेशलाइज टास्क। सो अब हम इसमें फीचर्स देखेंगे कौन कौन से फीचर्स बैंकिंग को हैं। ओके, सो फर्स्ट बैंकिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। सो बैंकिंग के अंदर बिजनेस का कोई भी पार्ट नहीं आता, ये आप सब लोगों को पता है। बैंकिंग के अंतर्गत सिर्फ बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ही ऑडिटेड होते हैं। सो बैंकिंग के अंतर्गत और कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। जैसे किसी बिजनेस के साथ मर्ज से बैंकिंग है तो पर्टिकुलर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ही फॉलो अप होंगे अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड बैंकिंग कंपनी हैज़ टू फॉलो the all kinds of, if they have subsidiary company in a foreign so they have follow under section 6.1 beside the companies acts. Okay, so they have to follow all kinds of rules and regulations which have maintained by the government, and auditor must aware of restriction while auditing the bank transaction. तो ऑडिटर्स अवेयर रहना चाहिए अगर वो सब्सिडरी करते हैं। बैंक बहुत सी फॉरेन कंपनीज बैंकिंग के साथ फॉरेन बैंकिंग के साथ कंपनी मर्ज करती है अपना, यानी कि सब्सिडरी लेती है, तो वो अगर उनका जो बिजनेस है तो वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए बैंकिंग को। सो ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है? ऑडिटर को ये सारी डिटेल्स प्रॉपर रिव्यू करना पड़ती है, प्रॉपर चेक, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बिजनेस में बैंकिंग का कोई भी इनिशियल पार्ट ना होना चाहिए, ये भी ऑडिटर इस चीज़ों की ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए, ताकि ही मस्ट बी स्टडी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिफोर कमेंसिंग हिज ऑडिट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस कब देखनी पड़ती है? जब वो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करने से पहले ऑडिटर को ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट विल बी कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 and 12 the banking contain provision of minimum capital to be maintained by banks. Okay, so banking capital requirement according to section किसके अंतर्गत रहेगी? 11 और 12 के अंतर्गत रहेगी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। और मिनिमम कैपिटल टू बी मेंटेन बाय द बैंक, और मिनिमम कैपिटल जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है दे हैव नॉट चार्जेस एज पर ह्यूज अमाउंट, दे हैव ओनली चार्जेबल एज पर minimum capital amount. Okay, as per the banking regulation act section 11 and 12, and they have contained in terms of rupees, जो यानी कि इंडिया के अंतर्गत ये मिनिमम अमाउंट में किसके कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो इन अ कैश और रुपीज़ के फॉर्म में रहता है। और यही सारे वेरियस बैंक्स के अंदर ये कैश और रुपीज़ के फॉर्म में हर एक कंपनी की हर एक बैंकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कैपिटल की, बट द बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट दे हैव बीन गिवन अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द मिनिमम कैपिटल विच हैव प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। ओके, सो सब्सक्राइब कैपिटल बैंकिंग को कितना परसेंटेज प्रोवाइड करा जाता है? 50%। एंड ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो प्रोवाइड एज पर द 50, नॉट मोर देन 50। ओके, एंड RBI हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड सम रेशियो एडुकेसी रेशियो टू मेंटेन अ कैपिटल। ओके, टू डो मीट द कैपिटल
requirement ratio. Okay, so capital requirement ratio mein we have discussed these points because under which section they have recorded the capital requirement and they require maintain the transaction and what kinds of in terms of rupees or in terms of dollar the other companies and outside companies, foreign companies, they have maintained in a dollar form and we have maintained in a rupees form. Okay, and that section 12, the subscribed capital of bank should not be less than 50% and authorized and paid up capital नॉट बी लेस देन 50%. तो 50% से कम नहीं होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल बैंकिंग का और जो सब्सक्राइब कैपिटल है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, तो इनमें दोनों में डिफरेंस है. And RBI has providing some kind of circular to meet that ratio purpose, capital purpose. Okay, so we have completed first or second point of slide features of affecting banks. So move to next slide. In this slide we have show the another points of slide features which are enacted by the अफेक्टिंग बैंक्स विच अफेक्ट द बैंक्स. तो बैंक को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जब वो मेंटेन करते हैं और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं इन चीज़ों के बैंकिंग के अंदर. रिजर्व फंड. तो रिजर्व फंड कंपनी बैंकिंग को क्यों रिक्वायरमेंट रहता है? बिकॉज द रिजर्व फंड इज़ दैट फंड विच हैव प्रोवाइडिंग अ नेट प्रॉफिट. रिजर्व फंड क्या प्रोवाइड करता है? एक यानी कि कलेक्टिव बैलेंस रहता है जो बैंकिंग कलेक्ट करके रखती है ताकि उन्हें ज़रूरत की चीज़ों पे दैट रिजर्व विल बी ट्रूथफुल. ओके, सो रिजर्व मस्ट बी कीप इन एक्ट. तो रिजर्व हम थोड़ा अमाउंट बैंकिंग रिजर्व करती है. तो अगर इफ सपोज दे हैव मेंटेनिंग अदर थिंग्स, अगर उनको यानी कि बाहर यूसेज कंपनी का डैमेज हो गया तो दैट रिजर्व विल बी यूज ऑन दैट पर्पस. सो रिजर्व फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक and that fund should be required. Section 70 of the act of every banking company must be transfer at least 20% of net profit to the reserve bank. और जो भी बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70 तो वो ट्रांसफ़र किससे करती है? जो कंपनी का 20% नेट प्रॉफिट है रिजर्व फंड, यानी कि जो भी कंपनी का यानी कि बैंकिंग कंपनी का फ़ायदा रहता है. ओके, तो 100% में से 20% दे हैव टू ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड एंड इट मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट. और रिजर्व फंड हमेशा किस में शो करा जाता है? इन अ बैलेंस शीट. ओके, इन अ बैलेंस शीट द रिजर्व फंड इज शोन सेपरेटली. ओके, एंड रिजर्व मस्ट बी कीप विथ बाय द कंपनी. Okay, so fourth point will be cash reserve and statutory liquidity ratio reserve. तो कैश रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकिंग के पार्ट्स हैं एंड दे हैव रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग कैश और टू मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिसोर्सेज. सो कैश के ये सारे बैंकिंग के हैं तो ये मोस्ट ऑफ बैंक को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो बैंक को ये मोस्ट ऑफ टाइमिंग्स पे इफेक्ट करते हैं वेदर वी हैव डूइंग अ बैंकिंग प्रोसेस. द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैज़ बीन रिजर्व. ओके, सो कैश रिजर्व रेशियो क्या मेंटेन करता है? ओनली कैश एज पर एटलीस्ट 3% ऑफ टाइम एंड डिमांड लिएबिलिटीज़. ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो विथ RBI ने कितना इक्वल अमाउंट में दिया गया है? एटलीस्ट 3% ratio will be required to reserve in a bank. Okay, and statutory reserve ratio is compulsory for the bank to maintain in form of. Okay, statutory liquidity ratio किसके फॉर्म में रहता है? इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ओके, और कैश रिजर्व रेशियो इज maintained by the schedule bank which have been not less than 3%. तो 3% से कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और है ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज़ मेंटेन. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसके फॉर्म में रहता है? इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और जो अप्रूव सिक्योरिटीज़ हम लोगों ने प्रोवाइड करी है बैंकिंग ने अपने कस्टमर्स को और बैंकिंग को, तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में मेंशन किया जाता है. ओके, कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेट द कैश
and liquidity ratio will calculate as per the form of gold and approved securities. And SR ये statutory liquidity ratio will not be less than 25% of total demand and time liabilities. Okay, so cash reserve ratio will not be less than 3% and statutory reserve ratio, liquidity ratio will not be less than 25%. Okay, so this is kinds of our points we have discussed. And fifth point will be off-signed features of bank which affect the banks will be restriction on investment. Restriction on investment. A banking company cannot hold shares as pledge, mortgage or owner of a company exceeding 30% of paid up capital reserve or 30% of capital of the other company which we less. ओके, जो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट है बैंकिंग मस्ट भी क्या होल्ड करती है, बैंकिंग कैन नॉट बी यूज एज पर मॉर्गेज और एब्सोल्यूट ओनर. सो बैंकिंग विच होल्ड कैन नॉट होल्ड शेयर एज पर प्लेज. तो बैंकिंग किसी की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं करती और बैंकिंग किसी की इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं चलती. सो ये इसका यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मोस्ट ऑफली कहाँ पे यानी कि अप्लाइबल होती है, इट कैन बी अप्लाइबल एज ऑन द पर्टिकुलरली बिजनेस पर्पस. ओके, सो रिस्ट्रिक्शन तो बैंकिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शन किसकी रहती है, बिजनेस की, और बिजनेस की रिक्वायरमेंट. ओके, तो बैंकिंग कंपनी होल्ड क्या नहीं कर सकती, शेयर्स एज पर द प्लेज और मॉर्गेज पे 30% से ज़्यादा का जो यानी कि फॉर्म इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर 30% से कैपिटल उनका जो रिज़र्व है और जो कैपिटल एंड रिज़र्व है उनका 30% ऑफ अदर कंपनीज अगर बैंकिंग के अंतर्गत बहुत से मर्ज करती हैं तो जितना उनका रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उतना ही वो लोग कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो बैंकिंग में मोस्ट ऑफ जो यानी कि पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो एज पर दैट परसेंटेज एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज का है, एक्सीड नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए. सो ये जो अदर कंपनीज है इफ़ दे इन्वेस्टिंग इन अ बैंक्स तो दे हैव टू फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ मेंटेनिंग रूल्स. और ये सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ती हैं वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक, of a particular nationalized bank, regional banks or a private sector banks. Okay, so auditor have to follow all kinds of features or to know all the things whether they have preparing an audit program or whether they maintaining an audit planning. So they have to focus on all the kinds of points or features which are affect the banks. Okay, so move to next point will be sixth point will be restriction on loans and advances. Restriction on loans and advances. A banking company cannot advances loans on the security of its own share. Okay, तो बैंकिंग कंपनी जो रहती है वो खुद के जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, जो उनके खुद के कंपनी के शेयर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड नहीं करती. ओके, इट कैन नॉट बी गिव अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस टू एनी डायरेक्टर और फर्म और प्राइवेट कंपनी. जो भी बैंकिंग का रिस्ट्रिक्शन लोन्स है वो किसी को भी बैंक किस को नहीं देगी, अनसिक्योर्ड लोन किसी को, यानी कि अगर जो सिक्योर्ड लोन है द बैंकिंग इज़ ओनली गिवन टू सिक्योर्ड लोन जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन के टूवर्ड्स मेंटेन करा जा रहा है, सिक्योर्ड लोन ही प्रोवाइड करेगी. अनसिक्योर्ड लोन और एडवांसेस अपने किसी भी डायरेक्टर को, प्राइवेट फर्म को या कंपनी को बैंक नहीं देते. इन सच केस ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का बैंकिंग का डायरेक्टर भी चाहे अगर वो अनसिक्योर्ड लोन दे तो बैंकिंग के अंतर्गत ये सारी लोन्स की रिस्ट्रिक्शन और एडवांसेस का ये भी मेंटेन. अनसिक्योर्ड लोन्स द बैंक हैज़ नॉट प्रोवाइड अनसिक्योर्ड लोन टू एनी अदर पार्टी. तो ओके, सो इसके अंडर वो डेप्थ अगर रहेगा, कर्जा रहेगा तो कर्जा वो लोग चार्ज नहीं कैलकुलेट करते. तो आरबीआई के ने जो रिफ्यूज़ किया है, आरबीआई रिक्वायर्स टू ऑब्टेन स्टिल मोर सिक्योरिटी. इन सारी चीज़ों पे लोन्स जो हैं जो हम ग्रांट करते हैं लेने से पहले जो फर्म्स और ये सब लोन्स लेती हैं तो ये क्या है उनको मंथली पेमेंट बैंकिंग को सबमिट करना पड़ता है कोई भी लो. तो ये किस में चार्ज होंगे, एज़ पर सिक्योर्ड लोन. और अनसिक्योर्ड लोन क्या है, एज़ पर द बेसिस ऑफ डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर की इच्छा भी कि इन फर्म्स को लोन दे तो दैट शेयर्स विल बी और लोन्स
एंड एडवांसेस विल बी रिस्ट्रिक्शन इन बैंक्स। तो मोस्ट ऑफ कंपनी देती है, बट बैंकिंग के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं चलती। ओके, तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ों को देख समझ कर ही अपने आगे के स्टेप्स मेंटेन करने रखते हैं। और अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, होल पार्ट कर रहे हैं, तो दे हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई। और डेप्थ ड्यू टू, कर्जे की जो भी जानकारी जो लेता है डायरेक्टर, दे हैव टू गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन टू द आरबीआई, okay, which are empowered. Okay, the RBI has providing the guidelines for empowered to give direction to the banking company. तो RBI have providing डायरेक्शन प्रोवाइड देती है बैंकिंग्स को एंड ग्रांट करती है। इफ डायरेक्टर हैव बीन द काइंड्स ऑफ मेंटेनिंग द फॉर्म, they have to more focus on the security first. The RBI has providing the security first to the restriction on loans and advances. Then they have the give to permission and prescribe a format to the loans and advances to the director. Okay. So this is our 76 point we have discussed now. Move to next slide. In next slide, the 7th point have been mentioned will be accounting. Okay, so accounting will be done according to section 29. Every banking has to prepare its financial statement in the format in third schedule as 31st March in each year. तो अकाउंटिंग किसके अंतर्गत रिकॉर्ड होती है? एज पर 29 सेक्शन। ओके, सो सारी की सारी बैंकिंग को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल हमारे स्टेटमेंट कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हम स्टेटमेंट हम कब फॉर्म करेंगे और कब, यानी कि अकॉर्डिंग हम लोग ये पूरा एक साल का हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर रहते हैं। और ये हम ईयर एंड हम कब करते हैं बैंकिंग? 31 मार्च इन ईच ईयर। ओके, एट द एंड ईयर उनका स्टार्टिंग ईयर कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जो भी यानी कि पूरा प्रिस्क्राइब ईयर है 1 अप्रैल, और ईयर एंड कब करते हैं? 31 मार्च। तो ये अकाउंटिंग के अंतर्गत, इसके सेक्शन के अंतर्गत बैंकिंग को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने फॉर्मेट दिया गया है बैंकिंग को, उसी के अंतर्गत फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उनको अपने ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। और एट द ईयर एंड दे हैव टू सबमिट that transactions or report of accounts financial statement to the authorities of banking. Okay, so next point will be auditing. Okay, अगर हम अकाउंटिंग का इसके अंतर्गत करते हैं 29 सेक्शन, और ऑडिटिंग वी हैव डन इन अ एज पर सेक्शन 30 द प्रोविजंस ऑफ फॉर बैंकिंग और ऑडिटिंग, जो भी यानी कि for audit, the provision for audit of banking audit, so they have been charged as per the section 30. जब हम ऑडिटिंग करते हैं बैंकिंग कंपनी की, तो एज पर सेक्शन किसके अंडर करेंगे? 30, एज पर सेक्शन 30 द अपॉइंटमेंट, द पावर, ड्यूटीज, रिमूवल एंड द लिएबिलिटीज। ओके, जो भी ऑडिटर की रहेगी ऑफ ऑडिटर आर एज अ कंपनी ऑडिटर। सो बैंकिंग में यानी कि कैसे रहेगा? तो जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं कोई भी ऑडिटर की, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा एज ऑफ कंपनी ऑडिटर। दे हैव फोकस ऑन सच थिंग द अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज, रिमूवल एंड लिएबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आर सेम एज कंपनी ऑडिटर। तो जैसे कंपनी ऑडिटर के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपॉइंटमेंट, पावर, सबकी अपॉइंटमेंट, किस किस की स्टाफ की, किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पावर्स क्या है ऑडिटर की, ड्यूटीज़ क्या है ऑडिटर की, और रिमूवल क्या पास्ट करा था, लिएबिलिटीज़ क्या है, जो ऑडिटर की, कंपनी बैंकिंग ऑडिटर की सेम रहती है एज पर कंपनी ऑडिटर। ओके, सो बोथ थिंग्स विल बी सेम। ओके, so the 9th point will be restriction on dividend. So bank has some kinds of restriction on dividend. Bank cannot be pay dividend unless all capitalized expenses are fully wiped off. ओके, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड क्या पे करता है? बैंक, कोई भी बैंक हैज़ नॉट, कैन नॉट बी पे एनी काइंड ऑफ डिविडेंड अनलेस कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। तो द बैंक हैज़ ओनली पेड टू द capitalized expenses dividend. They have restriction on dividend to pay any kinds of, okay,
expenses. So bank has not paid kind of dividend to particular item, equity, prescribed capital. So they have only paid a capital to the dividend. Okay, they have given a dividend to the capitalized expenses, and fully that expenses will be wiped off. Okay, so in this session we have, in this lecture we have discussed the slide features. First we have discussed the list of document of banking audits. Okay, and second we have discussed in this session the slide features of enactment affecting banks. Okay, so in these features there has been 9 points. So we have discussed in a detailed way of all the 9 points. Okay, so इस सेशन में हमने 9 points का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, फीचर्स कौन कौन से हैं, दैट फीचर विल अफेक्ट द बैंक. तो फर्स्ट फीचर का था रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स, सेकेंड विल बी कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड रिजर्व फंड, फोर्थ कैश रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिफ्थ restriction on investment, 6 restriction on loans and advances, 7 accounting auditing, 8 will be auditing, 9th will be restriction on dividend. So these are the features which affect the bank. Okay, and the auditor have more focus whether they have maintaining and auditing and making an auditing. They have to focus all these points, and then they have to utilize their auditing process and making and planning of that way. Okay, so from this session only we have discussed that thing, and another part of this chapter we have discussed the next lecture. Okay, so in this session we have only discussed that point only. Okay, so thanking you to all of you student, and one more instruction for you, please like this video, subscribe my channel, and in comment box mention your details first. Okay, so thank you to all of you students.